Good evening and welcome to yet another edition of Election Radar, a show that we are getting you on the show, on the ground, on the road, tracking each and every twist and turns of the political developments in the poll-bound state of Uttar Pradesh. We started this journey on Monday from Greater Noida, then to Aligarh. From Aligarh, we reached Deoband, Saharanpur, and now in Muzaffarnagar. We've already covered 300 kilometers and the journey has only just begun. So today was a crucial phase 1 of polling in Uttar Pradesh, a total of 58 constituencies, over 600 contestants who participated in this contest. Various places where important nerve centers, in fact, where elections were held. Now, just before polling was to begin, many leaders were making an appeal, go out and vote, we urge you to go out and vote. It's a natural process, needs to be done. But in that natural process, the Uttar Pradesh Chief Minister, Yogi Adityanath, made an interesting observation or an interesting comment. Let's listen in to what he said. सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी. So you heard Yogi Adityanath says that इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल नहीं बनने देना है और केरला नहीं बनने देना है. It should not become Kashmir, Bengal or Kerala this time around. The reference was very clear, just like 80-20, where a happy confusion was created. Oh, he meant this, oh, he meant that. But it is very clear that this was a clear indication towards minority appeasement in these various states. Then immediately there came a response because this was read in a totally different way. Or perhaps that was the way it was supposed to be read. Pinarayi Vijayan, the Kerala Chief Minister, said that it would be great if UP became Kerala. It would be really great if UP had a remarkable healthcare system, if it had the literacy, the kind that Kerala has, and also the grand potential that Kerala offers. So it will be great if UP became Kerala. Obviously, this was a comment from him. But then, in election-bound Uttar Pradesh, this comparison to Kashmir, Kerala and Bengal also became a big poll issue. The opposition latched on to what the Chief Minister said. Let's listen in to what Jayant Chaudhary had to say. प्रधानमंत्री जी के भी बयान आ रहे हैं और योगी जी ने भी जो वोट अपील किया आपने देखा, उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश को केरल और बंगाल मत बनने दो. आप केरल में लिटरेसी रेट देखेंगे, आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज़्यादा आगे है. तो ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं. आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. So on the show, on the election radar from Muzaffarnagar, on a day when polling has just begun, with the Chief Minister making these comments, the question that we are asking is, Yogi's Kerala, Bengal and Kashmir Barb, is this a desperate attempt to polarize the polls? This is just the beginning. Will this commentary, this form of comment, only continue and amplify from here on? Let me introduce Anirban Banerjee, is a political analyst who supports the Trinamool Congress, Shyam Prakash Jatav, leader of the BJP, as well as Professor Dinesh Varshney, leader of the CPI. Thank you very much, Mr. Jatav. I'll begin with you first. Is this a desperate attempt to polarize? योगी जी ने जो बात कही है वो इस चीज को ध्यान में रख करके कि पिछले 5 वर्ष में जो बदतर स्थिति में उत्तर प्रदेश था वो प्रगति की ओर चला है. 7वें नंबर से आर्थिक स्थिति में हम आज दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं. हमने यहाँ का बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है. हम हेल्थ के मामले में भी आगे बढ़े हैं, हम एजुकेशन के मैटर में भी आगे बढ़े हैं. कहीं आपका कोई गलत निर्णय जो आज गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है वो गुंडों के हाथ में दोबारा ना चला जाए, दंगाइयों के हाथ में दोबारा ना चला जाए, उस चीज के लिए उन्होंने अपील की है कि अगर आपने कहीं गलत वोट कर दिया तो जो दंगाई जिनको पुष्ट कर रही हैं, वो जो दल जो इस वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं अगर उनको मौका मिल गया तो फिर दोबारा जो है ये उत्तर प्रदेश की स्थिति
खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये अपील करी है कि देश के उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो वोट करने जा रहे हैं My पश्चिम only उत्तर point प्रदेश is का, this वो comparison सावधानी to करें। other states. Mr. Jatav, what UP was and what you have made it out to be is a matter of political discussion and debate. But your comparison to other states, what was the need to do this? Because now there is an instant comparison on other indices as well. अब बात हो रही है साक्षरता पे, on literacy, on human development index. देखिए, हमने कश्मीर को तबाह होते हुए देखा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी ने जो है जिस तरीके से बाहर निकाला 1989 में, हिंदुओं को वहां से पलायन किया, वहां पर हमने हालात खराब होते देखे हैं। हम पश्चिम बंगाल में हमने स्थिति देखी है कि क्या हालत है, वहां रोजगार की स्थिति खराब है। in this very Muzaffarnagar, there are people affected by the 2013 riots who are still living in pathetic conditions. And they say that nobody is listening to them. देखिए, 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, और जो दंगाई जो विक्टिम है, जो परेशान हुए हैं, उनके लिए योगी सरकार ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, घर दिए हैं, उनको घर बनाने के लिए पैसा दिया है, सारे बेनिफिट्स दिए हैं। Mr. Banerjee, I want to come to you अनाज now. बांट रहे हैं, किसी तरीके से कोताही नहीं बरती जा रही है किसी की भी प्रति। Mr. Banerjee, I want to come to you now. This comparison with Kerala and West Bengal and Kashmir, how do you look at this? I'll sum it up in one line basically. That is, if there is any anti-national narrative in our country, it has to be the BJP's narrative. I mean, you can be opposed to any political party, any political idea, any politician, but when you're asking for votes, how can you simply demean 3 states, 2 of which are ruled by the opposition? I mean, what do you mean by UP will become West Bengal or Kerala, as if those are places outside India, or some places where you cannot go, as if they are terrorism ridden, as if there are riots happening every day, as if people are famine affected? What is this? I mean, if you want to oppose the Congress or the SP or the RLD, you are at your will to do so. But simply going ahead and insulting the people from West Bengal and people from Kerala and Jammu and Kashmir, this is what we can term as anti-national. This is the party that is walking in a line which, if they do continue for the next 20 or 25 years, we will simply see nothing but civil wars in our country. They want to make the people of Uttar Pradesh fight with us, the people from Bengal, or fight with the people from Kerala. If this is the politics that the BJP wants to preach, they are the ones who are the anti-nationals. Okay. Professor Dinesh Varshney, I want to come to you now. The comparison was made to Kerala also. The Kerala Chief Minister also spoke. You are talking about the various other indices. I guess the indication from the Chief Minister and the BJP leaders is very clear that they were talking about appeasement of a particular community in Kerala. And from that standpoint, this comment was made. In a sense, this is also an admission on their part that yes, they were trying to polarize. Look, this is always an attempt by the BJP to raise the bogey. And not only raise the bogey, to criminalize and to divert the elections and divert the people's attention from the core issue. Comrade Pinarayi Vijayan has correctly said, and I also say on behalf of the left parties and the CPI, that we wish let the UP become like Kerala. Highest per capita income in Kerala as per Niti Aayog. Highest education literacy rate in Kerala as per Niti Aayog, not now, since so long. No, highest per capita yield per acre on agriculture. Have you ever heard, Sanket, the farmer society in Kerala, which you have heard in UP and other states? You've never heard in Kerala. You know why? Because the farmers' interests are protected through cooperatives. And we are always advocate of cooperative movement. Similarly, even the MSP is given on the agriculture, not only agriculture produce, but also on the vegetables. The minimum prices are fixed for vegetables also in wholesale market as well as the retail market. And you see the corruption, as per ADR report, the corruption is the least state in the Kerala, is the least corrupted state, only 4%. And that can also be removed if the central government handle their projects
through the Kerala government instead of directly handling it. Next point is, look, have you ever heard that any minister of the Kerala government is honoring the communal bigots which Jayant Sinha has done his Koti in his official Bangla? Have you ever heard that all those who are attacking the women or all those who are attacking are making the communal or the Sena and the Hindu Sena and all this are having the photos only with the BJP leaders? And have you not seen one of the sadhu or one of the chief of the Dera something has been given furlough in these election days only, and then his son has been given bail today? Istighatha has not investigated properly the case. This is all a demagogy made by Yogi ji to divert the attention from the core issues of UP, because he was utter failure in providing the medical relief during the corona second wave. Okay, Mr. Jatav, I want to bring you in right now. You heard what Mr. Varshney had to say. He feels that if you are comparing, can you please spell it out, Mr. Jatav? What is it about Kerala that Yogi Adityanath does not want UP to become? Because according to the Niti Aayog, as the CPI leader says, Kerala ranks number 1 or pretty influential on many of the indices. क्या चीज है केरला के बारे में जो आपको यूपी में नहीं बनाना है? धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न इन तीनों स्टेटों में देखे गए हैं, सबसे बड़ी विडंबना यह है क्योंकि वहां पर स्थिति यह है, देखिए, let me flip this argument around, Mr. Jatav. Let me flip this argument around. Let me one moment. Let me flip this argument around. You are saying धार्मिक आधार पर in these states there is appeasement of a particular community. Right? Now, tell me something. In Uttar Pradesh, would you want a situation where the reverse of this happens? Or that the law of the land or the rule of law prevails? Because right now, ho kya raha hai? Uttar Pradesh mein, the allegation is quite the opposite. That there is persecution now. That one set of people who are from a majority community are let off. They can do whatever they want. Right? ऐसा नहीं है. So I am saying that would you rather have the inverse happening in Uttar Pradesh, and thus making it like theoretically in terms of what you are saying like Kerala, or you would want the rule of law to prevail? अगर आपको कट्टरपंथी बंद करने हैं तो उसमें वो हर धर्म में बंद होने चाहिए, not just Muslims. उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कट्टरपंथी को प्रोटेक्शन नहीं है. जो भी शरारत कर रहा है वो सलाखों के पीछे है. किसी तरीके का धार्मिक उन्माद पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ है. कोई भी दंगा नहीं हुआ है. आज उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर है, प्रगति की ओर है. आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं कि किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को बेहतर किया है. जो हालात कश्मीर में, केरल में और पश्चिम बंगाल में है, धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न है वो उत्तर प्रदेश में कतई नहीं है. आज दंगाई जो है that's exactly you are saying that religious persecution should not happen in Uttar Pradesh, but the allegation isn't religious persecution already happening right now? The exact same allegation has been leveled against the BJP in UP right now in these last 5 years. Anyway, thank you very much to the three of you for joining us on this discussion. We put this to a debate right here in epicenter Muzaffarnagar also. Remember, this place saw very disturbing and dangerous scenes in 2013, where people were at each other's throats. They were dying. There was allegations of the state failing. Obviously, the Samajwadi Party government at that time was at the helm, and they failed in controlling the riots. And the BJP leaders were accused of fueling these riots. In this riot-infested region in 2013, obviously, there's been about 7-8 years now that have gone by. What do people here in Muzaffarnagar have to feel or say about this polarized brand of politics? You see, Rakesh Tiketh may be saying whatever, that this time it will not work. What do the leaders on the ground of the SP and the BJP have to say? We set up a chopal to ask them. Let's listen into this conversation. तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब प्रथम चरण के चुनाव शुरू ही हुए उस वक्त एक बयान दे दिया, और जब बयान दिया तो उस बयान में वो ये बोल गए, उनका ये कहना हो गया
कि भाई इस बार तो बीजेपी ले ही आना, क्योंकि इस बार अगर कोई और आ गया तो ऐसा माहौल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कि बंगाल, केरल या कश्मीर की तरह हो जाएगा। अब इसको लेकर के बड़ी तेज राजनीति हो गई है कि कहना क्या चाहते थे वो, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर में माहौल क्या है और इस बात को किस तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, उसको जानने के लिए आइए ये चौपाल लगाते हैं। तो मुजफ्फरनगर के एक प्रोमिनेंट सिटीजन, वरिष्ठ पत्रकार दिलशाद जी हम भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं गौरव जैन जी, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ हैं हरीश अहलावत जी भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलशाद, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। इस बयान को ध्रुवीकरण की तरह अगर ना देखा जाए तो कैसे देखा जाए? मकसद जो था बोलने का वो वोटिंग के एकदम शुरू होने से पहले हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश अगर नहीं थी तो और क्या थी? ये देखिए, ये बयान इसको जमीन पर किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, ये बयान आने के बाद हम बहुत लोगों से मिले और बहुत एरिया में भी गए और राकेश टिकैत से हमारी बात हुई इस बारे में। तो उनका एक बहुत ही अच्छी बात जो लगी, उन्होंने कहा देखिए अगर योगी जी कह रहे हैं केरल की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है बन जान दीजिए केरल को, केरल में कौन सा बुराई है भाई, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ, तो बहुत अच्छा होगा अगर उत्तर प्रदेश 100% साक्षरता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर केरल बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हाँ। तो यही चीज़ हमने कई जगह लोगों से पूछी, उन्होंने कहा तो बंगाल की या केरल की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो स्पष्ट शब्द में तो शायद वो बहुत ही कम लोग मतलब उसे बयान कर पाएंगे। हाँ। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना ये देखिए ये सब पार्ट ऑफ द इंडिया के हिस्से अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ। अच्छा, इस तरीके का विचार था। अब ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये विचार जो है वो आपको कौन दे रहे थे? सपा समर्थक दे रहे थे, भाजपा समर्थक दे रहे थे, हिंदू दे रहे थे, मुसलमान दे रहे थे, कौन सी जाति या पक्ष के लोग दे रहे थे? ये भी मायने रखता है। हो सकता है भाजपा के जो समर्थक होंगे वो इसको रीड किसी और तरीके से करें। अहलावत जी, आप किस तरीके से देखते हैं? सर, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय उठाया है, इस देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, जहाँ तक कश्मीर का विषय है, 90 के दशक में वहाँ का पलायन भी देखा है और पलायन के खिलाफ तत्कालीन जो सरकार थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में रही हो, किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं लिख रहा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये निश्चित रूप से जनता को जागृत भी करना है। अहलावत जी, ये डर फैलाने वाली बात नहीं है कि ये कहना कि अब की तो कश्मीर बन जाएगा या केरल बन जाएगा या बंगाल बन जाएगा। कौन सा बन रहा है? हमने साहब कश्मीर में वो हालात देखे हैं कि जो देश में रहने वाले नागरिक हैं, वो तो पुरानी बात है ना, वो तो पुरानी बात है। अब देखिए, ऐसा है, सरकार आपकी और सरकार को जज किया जाता है उसके 5 साल के कार्यकाल पर, लेकिन सरकार के मुखिया जो हैं वो गोल पोस्ट ही चेंज कर दें अगर, और वो बात करें कि भाई सन 90 की सोचो, 89 की सोचो या उससे पहले की सोचो, तो आपको नहीं लगता ये एक प्रयास है कि अभी की बात मत करो, जरा बहुत पहले की सोचो? नहीं, हमेशा हम लोग इतिहास से सीखते हैं और जो लोग अपना इतिहास भूलते हैं उनका निश्चित रूप से पतन होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करो तो हमने 2013 का दंगा बहुत नजदीक से देखा है। हमने यहाँ पलायन देखा है और हजारों लोग यहाँ, मैं उनमें स्वयं भी हूँ, मेरे पे स्वयं मुकदमे लगे हुए हैं कि बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। सरकार समाजवादी की, बेगुनाह लोग मारे भी तो गए राइट्स में, निश्चित रूप से मारे गए हैं, लेकिन तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने इस बात को प्रदेश के जनता को आगाह किया है कि वो सजग रहें और विकास के नाम पर ध्रुवीकरण ना हो, सच्चाई के लिए और प्रदेश में शांति का माहौल, इसके लिए वोट। गौरव जी, मुझे ये बताइए, ये केंद्र रहा है, यहाँ दंगे हुए हैं और ये बात है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार की निगरानी में, देख रेख में यहाँ पर दंगे हुए, लोगों की मौत हुई। अगर मुख्यमंत्री इस बात का उल्लेख कर रहे हैं अपनी चुनावी कैंपेन में, तो आपको क्यों लगता है कि ये ध्रुवीकरण है? क्योंकि वो तो हुआ था ना, सरकार तो आपकी थी और सरकार ने कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से दंगे नहीं रुक पाए। देखिए, कई पहलुओं पे एक साथ बात आई है। एक हमने मुख्यमंत्री जी का बयान बताया, बहुत सारे उसके पहलू हैं। अब हरीश अहलावत जी ने भी एक बात कही कि कश्मीर का प्लान हुआ, केंद्र सरकार नहीं बोली। जहां, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय केंद्र में शायद भाजपा गठबंधन सरकार में उस समय शामिल थी, इनके सांसद भी उस समय नहीं बोले, इन पर भी उस बात का दोष जाता है। दूसरी बात जो आपने कही 2013 के दंगों की, समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने
उस समय भी पूरी तैयारी की, पूरे प्रयास किए, लेकिन शायद भाजपा और आरएसएस की जो तैयारियां उस समय माहौल को खराब करने की थी, हमारी तैयारियां उसके सामने छोटी पड़ गई उस समय। ये बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उस समय दंश हुआ, जो बदनाम इन कट्टरपंथी पार्टियों ने जनपद को किया, आज जनपद उस दंश से उभरना चाहता है, उस दाग को धोना चाहता है, और तमाम किसान, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म जाति का आदमी एक मुट्ठी होकर मुजफ्फरनगर की छवि को मोहब्बत नगर के नाम पे, जैसे पहले हमेशा रही है, पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहा है कि मोहब्बत नगर के तौर पे इसे आगे लेके जाए। संगीत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो दंगों की जब बात आती है और भाईचारा की बात भी करते हैं, 2017 का इलेक्शन लीजिए, 2019 का इलेक्शन लीजिए और 2022 का इलेक्शन लीजिए, इन इलेक्शन से पहले भाईचारा की बात करते हैं कि दंगों में खाई पैदा हुई थी उसे ख़त्म कीजिए, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जो दंगों से पीड़ित हुए हैं। हजारों की तादाद में आज भी लोग जो है ना, वो अपने दंगा कॉलोनिया में रहने पर मजबूर हैं। उन लोगों की कोई खबर लेने वाला नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कोई भी, भाजपा, सपा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े, उस नाम पर राजनीति जरूर हो रही है। ये बोला जा रहा है कि वो ऐसा मंजर ना दिखे, लेकिन ये जो लोग हैं जो पीड़ित थे, उनके हित के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, ये पत्रकार जो है वो आप दोनों को कटघरे में रख रहा है। नहीं, उस दौरान जिन लोगों पे फर्जी मुकदमे हुए, जो लोग जेल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो जेल के स्तर पर उनकी मदद करने का प्रयास हो, चाहे जमीनी स्तर पर प्रयास किया हो, हमें ना हमेशा उन लोगों की सुध ली है, और कहीं ना कहीं इस बात को वे लोग मानते भी हैं। आप ये मानेंगे कि उसको सेंकने की भी प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि जख्म जो है वो कभी भरने ही ना दो, बार बार एहसास दिलाओ कि देखो दंगे हुए थे, ताकि लोग उससे उभर ही ना पाए। सर, ऐसा है कि जो दंगे हुए थे वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे, और वो कोई भी दंगा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि उनको भरने में ही, अगर हम उसका लगातार पता लेते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसे भरने में बहुत समय लगेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ना कि दंगों को हम आंच नहीं दे रहे, बढ़ाने का प्रयास, एक भी टिकट मुस्लिम को दिया कि समाजवादी ने? जवाब दीजिए, ये तो आरोप आपके ऊपर लगा है, और मुसलमान नाराज भी हैं इससे। हम लोग अलीगढ़ गए, देवबंद गए, ये चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने फॉर ग्रांटेड ले लिया मुसलमानों को इस चुनाव में। नहीं, देखिए, टिकट की जहां तक बात है वो उस पर भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी बातें रह गई पिछले फॉर्म में। इन्होंने 2013 की जो बात की, लोग जेल गए, वो कौन लोग जेल गए? इनके विधायक, इनके सांसदों पर मुकदमे लगे, उनके जो यहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके गाँव की स्थिति देख ली उस समय दंगे में क्या हुई, मैं गाँव के नाम भी लेके बता सकता हूँ। फर्जी वीडियो शेयर करके माहौल खराब करने की साजिश किसने रची? इनके विधायक ने। वो सच सबूतों के रूप में है, और कोर्ट में मामला उन चीज़ों का चल रहा है, वो सब लोग जेल गए। उसके अलावा ये कह रहे हैं जख्म भर नहीं पाएंगे, तो चाहेंगे हरा रहे। मुजफ्फरनगर की जनता पूरी तरह तय कर चुकी है, अब मुजफ्फरनगर के अंदर संप्रदाय धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होंगी। इस भाजपा की आरएसएस की साजिश को यहाँ की जनता नकार चुकी है। All right, so there you heard an excerpt of a fairly long chopal. It went on and on over tea, about 25 minutes. You can catch the entire link on YouTube. Now, as we end the show, I would like to tell you something very interesting that happened. We were shooting today outside a polling booth, and a man came out and looked at all the channels and said, biased, biased, biased. He kept calling everyone biased. And he said that, will you show unbiased news? And then he saw our microphone logo and he said, I want to talk to you. I said, sure. And then we started a conversation where this gentleman just put everything in perspective, which gives you a sense of how politically aware the citizens in this state of Uttar Pradesh really are. Let's listen in to that conversation. How does Muzaffarnagar respond to an element of polarization in the campaigning, election campaigning? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञान कुमार एडवोकेट है। ज्ञान कुमार जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो कैंपेनिंग हुई? मुजफ्फरनगर जो है वो 2013 के बाद एक आइडेंटिटी सी बन गई, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पोलराइजेशन से और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से राजनीति जुड़ गई। देखिए, जो 2013 का दंगा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही रिट फाइल किया था, और मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रयास इस सरकार के जितने लीडर्स हैं, इस पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी के जितने लीडर्स हैं, उनका पूरा प्रयास मुजफ्फरनगर को लेकर के टारगेट करके मुजफ्फरनगर को ध्रुवीकरण करने का रहा है। लेकिन इस बार ये ध्रुवीकरण हो नहीं पा रहा।
आज भी देखें प्राइम मिनिस्टर और योगी ने जो है बराबर में सहारनपुर में जो है स्पीच दी और सुबह ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने जो है सत्ताधारी लोगों को दंगा भगाने वालों को अगर वोट नहीं दिया तो ये केरला, बंगाल और जो है कश्मीर बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये केरला, बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनता है और कश्मीर बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कश्मीर का उसका केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। बंगाल का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो यहाँ से कहीं ज़्यादा बेटर है। इसी प्रकार से कश्मीर में भी जो है स्थिति जो है यहाँ से कहीं बेटर है। आप ये देखिए कि अगर इस प्रकार का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं तो ये देश कमज़ोर होता चला जाएगा। जो जख्म 2013 के समाप्त हो चुके थे उनको जानबूझ करके कुरेदने का काम ये सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में मुद्दा क्या है? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान को जिस तरीके से जो है बेइज्जत किया गया, जिस तरीके से उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या बताया गया है, उस अपमान का बदला किसान लेगा। किसान की आमदनी जिस तरीके से घटी है उसका बदला किसान लेगा। जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार है उसका बदला जो है लेने के लिए जो है यहाँ का नौजवान बेकरार है। और आज ही जिन लोगों ने बेरहमी से और क्रूरता से 4 किसानों को जो है लखीमपुर खीरी में जो है रौंदा, उस टोनी, केंद्रीय मंत्री टोनी के लड़के को जो है आज बेल मिल गई है। 4 महीने के अंदर बेल मिल गई है। चूंकि मैं लॉयर हूं, मैं जानता हूं 6-6 साल से लोग पड़े हैं और उनको बेल नहीं मिल रही। ये इस सरकार की लचर पैरवी का असर है कि आज एक हत्या जो है जिसके आरोपित है वो आज जो है बेल पर बाहर आया। और ये ऐसा क्यों किया गया है? ये लचर पैरवी इसलिए की गई है ताकि जो है एक वर्ग विशेष को जो है उसको के वोट को प्रभावित किया जा सके। ब्राह्मण वोट को प्रभावित करने के लिए उसे जो है ये बेल मिली है। मेरा स्पष्ट जो है इस पे जो है मत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। The politically aware citizen and the voter of this politically aware state, Uttar Pradesh. That's a wrap with me and my entire team right here. But we'll see you tomorrow from a brand new city or a brand new location as we continue our journey on the election radar. Good night and goodbye.